Hello, I think all of you, I hope that all of you are well at home, well and safe at home. Uh, so before just studying my today's topic, I'd like to just revise you or recap you what I explained in my last lectures. First of the thing that I have explained you about the utility. What is the utility of the clothes? The utility of the clothes, it cover our body. Now the question is that, suppose take it for example, if you are feeling very cold in the winter season, what do you need a winter wear? For this winter wear, you feel warm, you feel comfortable. Now, what is the utility of that jacket or the winter wear? Now, because of this winter wear, after wearing this, you are feeling comfortable, you are feeling very warm, is it clear? You get rid of that extreme cold situations. That is the utility of that jacket or the winter wear. Utility means the satisfaction power of the commodity. Utility मतलब होते हैं the satisfaction power of the commodity. Now, what is total utility? Suppose take it for example, if I suppose I am very thirsty. I came from the outside. Now it's at outside. You will find that at my place 42 degrees centigrade. I feel very thirsty. Okay, I take a glass. First, I take one glass of water, and I feel little bit satisfied. Next, I drink another one glass. Next, I feel more satisfied. Next, I drank one more. I take one more unit of glass of water. So I am also satisfied. Now the question is that in the first class, I got 5 utils. Second class, I got 3 utils. And the last class, I got 2 utils. So what is the total? 5 plus 3 plus 2 means 5 plus 3 8, 8 plus 2 10. This is the total. This is considered as a total utility. Is it clear? Now कंजम्पशन करने के कारण जितने कमोडिटी हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसके जो टोटल हमें यूटिलिटी मिल रहा है, टोटल यूटिलिटी को अगर हम ऐड करेंगे, इज इट क्लियर, हमें जो मिलता है, इज इट क्लियर, दैट इज कंसिडर्ड एज अ टोटल यूटिलिटी. एज आई टोल्ड यू right now that utility means the satisfaction power of the commodity. Now utility का भी एक यूनिट होते हैं. What is the unit of utility? Utils. Utils is the unit of utility. तो फर्स्ट क्लास हमने जब पानी पिए थे कितना मिला था? 5 utils. Second glass 3 utils. And the third glass, that is the 2 utils. The total is 10 utils I got after consuming 3 glass of water. ये जो total हमें 10 utils मिला है satisfaction, this is considered as a total utility. Now the concept is total utility is clear. Now what is marginal utility? देखो, see here, when I consume first unit of the glass, what is my utility? 5. When I consume second unit, what is the total utility? 8. देखो, एक ग्लास और दूसरे ग्लास में हमारे टोटल यूटिलिटी 5 से कितना हो गया ना? 8. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते हैं ना? एक एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, देयर इज अ चेंज इन TU. दिस चेंज इज कॉल्ड मार्जिनल. जब 0 ग्लास कंज्यूम किए थे, हमारा टोटल यूटिलिटी क्या था? 0. एक एडिशनल 0 के साथ एक ऐड करो, हमारा यूटिलिटी 0 से कितना हो गया? 5. मार्जिनल यूटिलिटी क्या डिफाइन करेंगे? यहाँ पर 5. नाउ नेक्स्ट, एक और ग्लास पानी पीने के कारण एक फर्स्ट क्लास में हमें टोटल यूटिलिटी कितना था? 5. सेकेंड ग्लास जब आपने पानी पिए, टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 8. एक एडिशनल यूनिट पानी पीने के कारण फर्स्ट यूनिट के बाद, व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट यूनिट के बाद हमारे ट्यू कितना चेंज हुआ ना? 5 से कितना हुआ? 8. एक एडिशनल यूनिट कंजम्पशन करने के कारण हमारा TU 5 से कितना चेंज हो गया? 8. तो ये जो 3 यूनिट चेंज हुआ, इस 3 यूनिट को बोला जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी.
As I explained in the previous chapter, when I explained law of diminishing marginal utility, आप लोग को मैंने समझाया था marginal utility क्या है. Now first class पानी पिया 5 utils, second class पानी पिया 3 यूनिट बड़ा है 8 utils हो गया, थर्ड क्लास पानी पिया तो 8 से 10 यूटिल्स, टोटल यूटिलिटी 10 हो गया. तो 5 से कितना हुआ 8, कितना मार्जिनल यूटिलिटी 3. एक एडिशनल और यूनिट सेकंड से फिर एक ग्लास पानी पिया, थर्ड यूनिट जब पानी पिया 8 से कितना हो गया 10, कितने की इंक्रीज हुआ 2. ये जो एक एडिशनल यूनिट कंजम्पशन करने के कारण हमारे जो टोटल यूनिट में टीयू में जो चेंजेस आ रहा है, इसी को बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी. क्या बोला जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी. कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस एक्सप्लेन यू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते हैं ना? LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको ये बताते हैं आफ्टर कंजम्पशन ऑफ, है ना, कंसेक्यूटिव, इसलिए कोई भी एक कमोडिटी का हम अगर कंसेक्यूटिवली अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हम क्या देखते हैं ना, TU इज increasing at a decreasing rate and MU falls where TU is maximum, MU is negative, MU is 0. When TU decline, MU negative. क्या बोला हूँ? Law of diminishing marginal utility states that as you consume more and more unit of a commodity, TU increasing at a decreasing rate, MU will falls where TU is maximum, MU is 0. When TU decline, MU become negative. It depicts, it states the relations between the total utility and marginal utility. What we have seen initially, both are at an increasing rate. When TU increasing at a decreasing rate, MU falls. Is it clear? Where TU is maximum, MU is 0. Where TU decline, MU negative. Can I make you understand? तो as we consume more and more unit of a commodity, हमारे जो total utility होते हैं ये decreasing rate में बढ़ते हैं, marginal utility fall होते हैं. यही बताते हैं law of diminishing marginal utility. Can I make you understand? तो what we have studied in the previous chapter, first क्या होते हैं ना, my topic is consumer equilibrium. इसके जाने के पहले हमें utility समझना है. utility मतलब satisfaction power of a commodity. टोटल यूटिलिटी मतलब जितना हमने कमोडिटी कंजम्पशन किए हैं उसके टोटल जो यूटिलिटी निकालते हैं, दैट इज द टोटल यूटिलिटी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द यूनिट ऑफ टोटल आई मीन यूटिलिटी यूटिल्स. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको ये बताते हैं एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, टोटल utility decreasing at a decreasing rate, total utility increasing at a decreasing rate. A marginal utility falls where TU is maximum, MU is equal to 0. When TU decline, MU negative. Can I make you understand? Next we come to the point consumer equilibrium. Consumer equilibrium एक condition को बताते हैं. What is conditions? ना एक ऐसी कंडीशंस है जिसमें आप जो रिसोर्स मिल रहा है उसमें आप मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो. इसको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ आप लोग को. सपोज यू enjoyed a glass of juice. ओके, आपने एक ग्लास लस्सी और जूस पिए हो और इट कॉस्ट 20 रुपीज और 20 रुपीज के हिसाब से यू आर वेरी सेटिस्फाइड. आपने जितने की पैसे दिए हो और उस हिसाब से आपको उतना सेटिस्फैक्शन मिला. Can I make you understand? Means the money you have paid and the satisfaction derived both are equal. Then that point or you are the maximum satisfied within 20 rupees, maximum satisfaction within 20 rupees. That condition, that psychological condition is considered as a consumer equilibrium. Now, consumer equilibrium means एक पैसा दियो 20 रुपया दियो, 20 रुपया के हिसाब से आपको 20 रुपये में इतना अच्छा मिला और आप जिस हिसाब से पैसे दिए हो उस हिसाब से आपको उतना सेटिस्फेक्शन मिला है, आप बहुत तृप्त हो, यू आर वेरी सेटिस्फाइड. दैट कंडीशन इज कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर.
Now look here, we are defining consumer equilibrium on the basis of satisfaction, and satisfaction is a psychological phenomenon. Here the question lies, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन कर रहे हैं ना सेटिस्फैक्शन के हिसाब से, तो सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट आर नॉट एग्रीड विद दिस मेथड, और इस मेथड को बोला जाते हैं आपका कार्डिनल अप्रोच। क्या बोला जाते हैं? कार्डिनल अप्रोच, और इसको बोला जाते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। हम सेटिस्फैक्शन को 1 to 3 में एक न्यूमेरिक फॉर्म्स में प्रेजेंट कर रहे हैं। So some economists argue that एक सेटिस्फैक्शन को हम कैसे हम एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना जो मेंटल जो होते हैं उसको हम कैसे न्यूमेरिक में किसी के लिए अगर मान लीजिए सेम लस्सी किसी के लिए उनको अच्छा भी नहीं लग सकते, उनके लिए सेटिस्फैक्शन लेवल आपने 5 इंटील्स बोले, उन्होंने बोला नहीं ये 3 होना चाहिए, तो 3 हो ही सकते, इट्स वेरी कॉमन। So the few of the economists follow the another method that is called the ordinal approach, और इसी को बोला जाता है हिक्सन एनालिसिस। क्या बोला जाते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच को बोला जाते हैं हिक्सन एनालिसिस। तो हिक्सन एनालिसिस को बोला जाते हैं ऑर्डिनल अप्रोच ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे। तो हमने क्या बोला राइट नाउ, व्हाट आई हैव एक्सप्लेन ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस अपने पास कितना रिसोर्स है अपने, और उस रिसोर्स से आप कितने सेटिस्फाइड हो, है ना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद इन हिज लिमिटेड रिसोर्स। कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड? This condition is considered as a consumer equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे हाथ में 2 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को और बोला जाते हैं इज इट यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच, एंड अनदर वन यू सी दैट इज द ऑर्डिनल अप्रोच जिसको हम बोलते हैं हिक्सन एनालिसिस। सो वी हैव 2 एनालिसिस, one is the cardinal analysis or the utility analysis, another one is the ordinal approach or the Hickson approach on the basis of rank and preferences, that is the ordinal approach, and on the basis of satisfaction, on the basis of utility, that is called the utility analysis. Now there in case of utility analysis there are more something that is divided in case of single commodity and in case of double commodity. Right now I have explained you जब आपने जितने की पैसा दिए हो उस हिसाब से आपको सेटिस्फैक्शन मिला है, और इसी स्टेट के हिसाब से हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहे हैं। सो मनी यू हैव पेड एंड द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इफ इट इज इक्वल, जितने 20 रुपया के हिसाब से आपने जितने जूस जिस क्वालिटी के जिस स्टैंडर्ड की जूस आपको मिला है, अगर आप सेटिस्फाइड हो दैट मींस यू आर एट द इक्विलिब्रियम। कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड? मतलब 20 रुपया के हिसाब से आप उतना सेटिस्फैक्शन आपको मिला है, यू आर वेरी सेटिस्फाइड, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मींस इक्वालिटी, मनी पेड मींस प्राइस एंड द यूटिलिटी। प्राइस आपको जितना आपने पैसा दिया हो उस हिसाब से आपको उतना यूटिलिटी मिला है। दिस कंडीशन इज कंसीडर्ड एज अ इक्विलिब्रियम। कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड? आपने जितने की पैसे दिए हो, अगर आपने प्राइस ज्यादा दिए हो और यूटिलिटी आपको कम मिला है, आपको लगा 20 रुपया आपको दिया हो, इज इट क्लियर, और जो लस्सी और जो जूस बहुत फीके हैं, कोई टेस्टलेस नहीं है, तो यू आर अनसेटिस्फाइड। The money you are paid, it is more than satisfaction. Can I make you understand? And when the money you paid equal to your satisfaction, that is the consumer equilibrium. Can I make you? ये दूसरा भी हो सकते हैं, आपने 20 रुपीस दिए हो और देने के बाद आपको लगा नहीं इसका कीमत तो और अच्छा होना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया 20 रुपीस के हिसाब से एक बहुत ज़्यादा हमें चलो एक ग्लास और दे दे। Is it clear? आप जब एक ग्लास और ले रहे हो, इसका मतलब मनी यू हैव पेड
and the satisfaction is much higher, you are not at the equilibrium position. Equilibrium position उसी टाइम को बोलेंगे जिस टाइम प्राइस एंड द यूटिलिटी बोथ आर सेम और इक्वल होते हैं. अगर आपने प्राइस ज्यादा दिए हो और यूटिलिटी आपको कम मिला है, यू आर नॉट एट द इक्विलिब्रियम स्टेट. और अगर आपने प्राइस दिए हो, जो प्राइस वॉट एवर प्राइस यू हैव पेड, यू थिंक दैट यू आर गेटिंग मोर यूटिलिटी, you will purchase another one, another cup of juice, another glass of juice. Can I make you understand? और हम क्या बताते हैं ना, it support law of diminishing marginal utility. फिर से आ रहा है law of diminishing marginal utility. आपको क्या बोला है ना, as we consume more and more unit. तो आपने फर्स्ट क्लास जब जूस पिए थे 20 रुपीज पे किए हो और आपको यूटिलिटी मिला है, सपोज टेक इट फॉर एग्जांपल, है ना 50 यूटिल्स मिला है, तो यहाँ पर ज्यादा यूटिलिटी आपको मिला है, तो आप क्या करोगे, एक ग्लास और जूस पियोगे. सेकेंड ग्लास जब जूस पियोगे तब क्या होगा ना, आपका यूटिलिटी कम हो जाएगा और तब आपको सेकेंड ग्लास पीने के बाद आपको लगेगा नहीं, अभी जितनी पैसा दिया और उस हिसाब से आपके यूटिलिटी कम होने के कारण नहीं, ठीक है, मतलब आई एम सेटिस्फाइड. So that condition is considered as a consumer equilibrium. ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, एकदम इक्वली प्राइस के हिसाब से यूटिलिटी इक्वल होना चाहिए और ये मैक्सिमम होना चाहिए. प्राइस जितना प्राइस हमने दिए उसके हिसाब से एकदम बिल्कुल सही है. Then that condition is considered as a consumer equilibrium. Now one more thing I'd like to tell you. One more thing, you just understand me. Suppose take it for example, you purchase a pen. आपने एक पेन परचेस किए हो and that cost, suppose take it for example 10 rupees. How much it is? 10 rupees. तो मैंने एक चीज और बताया हूँ यहाँ पर, देखो आप लोग, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हम अभी पढ़ेंगे. मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. अब ये मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होते हैं ना, जब हम यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड करते हैं. मैंने क्या बोला, व्हाट आई टोल्ड यू, यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड करते हैं. तो आपने एक पेन परचेस किए हो, आपको 120 यूटिल्स, आपको कितना मिला, सेटिस्फेक्शन मिला 120 रुपीज. और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेन, 10 रुपीज. अगर 120 को 10 से डिवाइड करते हो तो क्या आते हैं आपके ना 12, ना प्राइस कितना है 10 और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या आएगा आपको, एमयूएम क्या आएगा ना 12. 10 and 12 is not equal, so you will purchase another pen. Is it clear? जब आप सेकेंड पेन परचेस कर रहे हो तो प्राइस तो आपका 10 रुपीज ही देना पड़ा, लेकिन इस बार आपको 100 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला. अभी देखो कितना मिला, 100 यूटिल्स. 100 यूटिल्स को 10 से डिवाइड करो, प्राइस से डिवाइड करो तो कितना आएगा 10. देखो प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. अभी क्वेश्चन ये है सर, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इसलिए क्यों किया गया है, क्योंकि प्राइस के यूनिट रुपीस होते हैं, यूटिलिटी का यूनिट यूटिल्स होते हैं. इन दोनों को एक रेशियो में लेके आते हैं, हम एक कॉमन टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. दैट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी तभी तैसे निकाले जाते हैं जब हम यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड करते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल में अभी बोला हूँ, 120 यूटिल्स हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला था फर्स्ट पेन से, और हम जो प्राइस है 10 रुपीज से डिवाइड किया था, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हमें कितना मिला 12 और हमारा प्राइस कितना है 10. हमने सेकेंड पेन जब खरीदे हैं तब हमें 100 यूटिल्स मिला, क्योंकि एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताते हैं as we consume more and more unit of a commodity, utility goes on decreasing. utility कम होने लगते हैं. क्या बोला हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, as we consume more and more unit of a commodity, हमारी यूटिलिटी कम होने लगते हैं. तो फर्स्ट पेन में हमें 120 मिला था और सेकेंड पेन में we derived 100 यूटिल्स.
हमें 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला था। तो 120 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम था 12, और सेकेंड पेन में जब 100 यूटिल्स मिला है तो हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना आते हैं 10। देखो प्राइस 10 और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी 10 दोनों इक्वल है, और इस कंडीशन को बोला जाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड? This is all about the consumer equilibrium in case of single commodity. Now let's come to the double commodity. In case of double commodity, जब दो commodity दोनों commodity से certain एक same level of satisfaction मिलता है, is it clear? That condition is considered as a consumer equilibrium in case of double commodity. Like pen and paper. पेन से जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पेपर से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो दोनों कमोडिटी से जब इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है उस कंडीशन को बोला जाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी। मींस marginal utility of X commodity is equal to the marginal utility of Y commodity, और Mx by Px और My by Py जब इक्वल हो जाते हैं दोनों कमोडिटी से हमें एक इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलते हैं विद इन अ लिमिटेड रिसोर्स, हमारे एक फिक्स्ड रिसोर्स में, तब हम बोलते हैं डबल कमोडिटी इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल। So let me explain once again. Consumer equilibrium means consumer equilibrium means जब हमारे पास जो limited resource है, हम एक consumer derive when a consumer derive the maximum satisfaction within his limited, मतलब एक limited resource में जब एक consumer को maximum satisfaction मिलता है उस conditions को बोला जाता है consumer equilibrium। अभी ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। वन इज कॉल्ड द कार्डिनल अप्रोच जिसको हम यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं, जिसको हम न्यूमेरिक फॉर्म्स में यूटिलिटी के हिसाब से न्यूमेरिक फॉर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। अनदर वन इज कॉल्ड द ऑर्डिनल अप्रोच जिसको हम हिक्सन एनालिसिस में बोलते हैं। हिक्सन एनालिसिस ऑर्डिनल अप्रोच को मैं जस्ट अभी कार्डिनल अप्रोच के बाद ही एक्सप्लेन करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच। जब हम न्यूमेरिक फॉर्म में यूटिलिटी प्रोसेस से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं उसको बोला जाता है कार्डिनल अप्रोच। ये यूटिलिटी मींस द सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी। तो इसमें कुछ इकोनॉमिस्ट दे आर नॉट एग्री with the concept with the cardinal approach, so they support to the ordinal approach, they follow to the ordinal approach जो rank के basis में preference के basis में explain करते हैं। Can I make you understand? Next, cardinal approach में हम देखेंगे, is it clear? There are two methods, there are two not the two methods, there are two concepts are there. One is the single commodity and double commodity। अभी ये सिंगल कमोडिटी में क्या है, आपको अभी मैंने बोला जितने की प्राइस पे कर रहे हो उतने की यूटिलिटी मिल रहा है एंड यू आर सेटिस्फाइड, उस प्राइस में आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एंड यू आर सेटिस्फाइड, दैट स्टेट इज कंसीडर्ड, दैट कंडीशन इज कंसीडर्ड एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपने 20 रुपीज दिए हो, 20 रुपीज की यूटिलिटी के हिसाब से आपको एक बढ़िया शरबत, आपको एक बढ़िया जूस मिल जाते हैं, आपको एक बढ़िया लस्सी, 1+ लस्सी मिल जाते हैं, सो दैट इज कंसीडर्ड एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ प्रोडक्ट इज मच, मतलब यूटिलिटी को देखो, यूटिलिटी एक डिफरेंट यूनिट है, इज इट क्लियर, एक डिफरेंट यूनिट है, और आपके प्राइस की यूनिट है रुपीज, इज इट क्लियर, यूटिलिटी का यूनिट है यूटिल्स। जब हम मार्जिन को हम एक कॉमन टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम कॉमन टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जब हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ प्रोडक्ट इज, जब यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ प्रोडक्ट एक्स। इस कंडीशंस को बोला जाता है। तो एज आई एक्सप्लेन यू, एक पेन का एग्जांपल्स दिया था आपको, मैंने बोला था व्हेन यू परचेज द फर्स्ट पेन, इज इट क्लियर, यू आर गेटिंग यू डिराइव द यूटिलिटी ऑफ 120 यूटिल्स। अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो प्राइस कितना 10 और अपनी यूटिलिटी कितना मिला 12।
इट्स नॉट इक्वल। लेकिन दूसरे पेन जब आप खरीदते हो तब आपके यूटिलिटी कम हो जाते हैं एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस टाइम आपका यूटिलिटी हो जाते हैं 100 और आपने प्राइस पेमेंट की हो 10, तो 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आते हैं ना, प्राइस आपका 10 है, यूटिलिटी आपको 10 मिल रहा है, सो यू आर दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आते हैं आपका डबल कमोडिटी। इन केस ऑफ डबल कमोडिटी, now marginal utility of X commodity when it is equal to the marginal utility of Y commodity, जब दोनों equal means दोनों प्रोडक्ट से, सपोज पेन एंड पेपर है ना, तो दोनों प्रोडक्ट से आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस कंडीशंस को बोला जाते हैं ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी। Can I make you understand? So right now we have explained, right now I have explained about the cardinal approach. मैंने अभी आपको cardinal approach के बारे में बताया, उसके बाद cardinal approach में single commodity क्या होते हैं, double commodity क्या होते हैं, ये मैंने explain किया हो। Now we are next part we are going for the ordinal approach. Now what is ordinal approach? Ordinal approach on the basis of rank and preference. Hello. Now, right now I will explain you the second part, that is the ordinal approach. Now see here, ordinal approach on the basis of rank and on the basis of preference. On the basis of rank and on the basis of preference. Suppose take it for example, there are two fruits for you. One is the, suppose take it for example, apple, another one is the banana. Now which food you want, which fruits you would like to most? Suppose if you suppose you have a 10 rupees, suppose take it for example, आपके पास 10 रुपया है. How much money is there? Now you have 10 rupees. And one apple cost 1 rupee and one banana cost 50 paisa. Now see here, one apple cost 1 rupee and one banana cost 50 paisa. Suppose take it for example, now आपके if I plot it, what we will get? अगर हम प्लॉट में एक शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल मीन्स टैबुलर प्रेजेंटेशंस, इज इट क्लियर? ना कैसे शेड्यूल बनाना है? सपोज टेक इट फॉर एग्जांपल, हाउ आई विल मेक द शेड्यूल्स, इज इट क्लियर? जस्ट सी हियर, what I told you, one apple cost rupee 1 and one banana cost of 50 paisa. Suppose take it for granted, suppose if you have and you have only 10 rupees, आपके पास 10 ही रुपया है, कितना है? 10 rupees. Now see here, apple, banana. Now see here, if you purchased 10 apples, अगर आप 10 apples खरीदते हो 0 banana, अगर 8 apples खरीदते हो तो I mean 4 bananas, is it clear? अगर आप 6 खरीदते हो, is it clear? ना 8 bananas, अगर आप 4 खरीदते हो तो what will happen? 12 bananas, अगर 2 खरीदते हो तो आपको 16 bananas. Can I make you understand? तो इसको अगर हम प्लॉट करते हैं, if we plot it right now, is it clear? What we will get? I need a good one. Yes. What we will get? Now, suppose take it for example. इस तरफ हम एप्पल को दिखा रहे हैं.
ठीक, इस तरफ हम बनाना को दिखा रहे हैं, मीन्स एक्स एक्सिस में आपका एप्पल्स आ रहे हैं और वाई एक्सिस में आपका बनानास आ रहे हैं। सपोज हम प्लॉट कर देते 2 4 6 8 and this is 10. So can I make you understand? तो फर्स्ट हमने क्या देखे और इधर हम 4 का स्केल ले रहे हैं 4 8 12 16. Is it clear? तो हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? Bananas. What I am showing here? Bananas. Is it clear? And what I am just making little bit clear. And what it is here? Tin apple. Now see here. तो फर्स्ट में हम क्या प्लॉट करेंगे? 10 एप्पल्स। 10 एप्पल्स यहाँ। बनानास क्या है? 0, नथिंग। सेकंड में हम क्या प्लॉट करेंगे? ना 8 एप्पल्स एंड 4 बनानास, राइट हियर। नेक्स्ट में 6 and 8, 6 apples and 8 bananas. Next में 4 12, 4 apples 12 bananas. Next में 12 apples, 2 apples and 16 bananas. आप इसको जोड़ो, just draw the line. What we will see? Now we will see this type of a line which is called the budget line. उसको क्या बोला जाते हैं? Budget line. What I am saying? The budget line क्या होते हैं? It shows the different combinations, graphical presentations of different combinations of two of the goods. What are the two of the goods? As I told you, the apple and the banana. And how much resource you have? How much money? Within 10 rupees. Can I make you understand? Next एक बहुत important चीज है, is it clear? What is budget equations? अभी budget equations क्या है? It's very easy to understand. What is budget equations? Budget equation is equal to M, stand for money, quantity of product X, that is A, and the price X plus quantity of product Y into the price of product Y. अगर हम एक इक्वेशन आते हैं, इसी को बोला जाते हैं, this is called the budget equations. What is budget equations? M is equal to quantity QX PX plus QY PY. Now here try to understand. Suppose take it for example. हमारे यहाँ पर फर्स्ट में क्वांटिटी कितना है? 10. Is it clear? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 10 यूनिट्स एप्पल और प्राइस कितना है? 1 प्लस यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर बनाना कितना है? क्वांटिटी 0 इनटू प्राइस 50, अल्टीमेटली 10 रुपीज आएगा। टेक इट फॉर अनदर वन, हम और एक एग्जांपल्स ले रहे हैं। सपोज टेक इट फॉर एग्जांपल, नाउ इफ वी रिमूव इट, नाउ दिस वन, नेक्स्ट वन, व्हाट इज देयर? 6 8। तो क्वांटिटी क्या है ना? x क्वांटिटी कितना है? इसको हम x बोल रहे हैं, इसको हम y बोल रहे हैं। x क्वांटिटी कितना है? 6 और प्राइस कितना है? 1। 6 into 1, y क्वांटिटी कितना है? 8 और प्राइस कितना बोलते हैं? 50. 0.50 is equal to 10. देखो यहाँ पर 6 1s are 6, 8 by 4 is equal to 10. So this is considered as a budget equation. इसी चीज को बोला जाते हैं budget equation. तो budget equation क्या है ना? M is equal to QX PX plus QY PY. This is called the budget equation. इसी को बोला जाते हैं budget equation. Can I make you understand? Next part में हम क्या देखेंगे ना? एक और चीज पढ़ना है, that is called the monotonic preferences.
Now what is monotonic preferences? I will explain you right now. Now monotonic preferences क्या होते हैं? What is monotonic preferences? I will show you here. See here, this is called the monotonic preferences. इसको बोला जाते हैं monotonic preferences. What is monotonic preferences? Monotonic preferences क्या होते हैं? ना monotonic preferences इसी चीज को बोला जाते हैं. यहाँ पर क्या इक्वेशन है ना, 6 apples and 8 bananas. इस पॉइंट में क्या होते हैं? 6 apples and 8 bananas. Monotonic preferences मतलब ये होते हैं, it means that a rational consumer want to purchase maximum number of 2 commodities. तो इसलिए एक रैशनल कंज्यूमर क्या करते हैं ना, 10 रुपया में मैक्सिमम एप्पल्स, मैक्सिमम बनानास, ये कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर एक कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं. See here, 6 and 8 is the monotonic, क्योंकि 6 में उनको क्या कर रहे हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 एप्पल्स मिल रहे हैं, साथ में 8 बनानास, तो इस कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं. Can I make you understand? A rational consumer want to purchase maximum number of commodity within his limited income. Maximum number, मैंने क्या बोला ना, चाहे वो 6 एप्पल्स हो, चाहे आपका 8 बनानास, ये मैक्सिमम कमोडिटी परचेज करना चाहते हैं. इसलिए इस पॉइंट को, दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज अ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. इसी को बोलते हैं monotonic preferences. Now see here, थोड़ा सा मैं एक चीज और यहाँ पर आपका ऐड कर रहा हूँ. Is it clear? Now firstly I'll explain that budget line क्या होते हैं. मैंने आपको budget line explain कर चुका हूँ. Is it clear? Monotonic preferences explain कर चुका हूँ. Now one thing is left, that is the consumer equilibrium. ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको बचा है. यहाँ पर हम अभी कंज्यूमर, तो यहाँ पर क्या होते हैं ना, व्हाट हैपन, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में. इंडिफरेंस कर्व आपको इसी पॉइंट में टेंजेंट पोजीशंस इसको बोलते हैं. यहाँ पर क्या करते हैं, इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर टच करते हैं और इसी चीज को बोला जाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच. इसी चीज को बोला जाते हैं, इसी पॉइंट को बोला जाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय द ऑर्डिनल अप्रोच. नाउ हियर आई हैव यूज्ड इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व मींस इट इज नथिंग, ये सेटिस्फेक्शन लेवल को ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहा है. क्या बोल रहा हूं मैं? सेटिस्फेक्शन लेवल को, where a consumer is indifferent in case of 2 commodity. What are the 2 commodity? Apple and banana, दोनों से. Is it clear? Where the consumer is indifferent for the 2 of the commodity. ये ग्राफिकल लेवल में, ग्राफिकली अगर हम किसी कार में हम अपना सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक ऐसी कार मिलता है जिसको बोला जाते हैं इंडिफरेंस कर्व. हमें एक ऐसी कर्व मिलते हैं जिसको बोला जाते हैं इंडिफरेंस कर्व. अभी इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं, इज इट क्लियर? सो मैंने क्या बोला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इन केस ऑफ 2 कमोडिटी. 2 कमोडिटी को अगर हम ग्राफिकली कितने सेटिस्फाइड है उसको अगर ग्राफ के आकार में हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोला जाते हैं इंडिफरेंस कर्व. नाउ हियर यू सी इंडिफरेंस कर्व का कुछ रूल्स होते हैं, कुछ assumptions होते हैं. इज इट क्लियर? एक इंडिफरेंस कर्व कभी दूसरे इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करते. इसका मतलब, सपोज टेक इट फॉर एग्जांपल, व्हाट इज माय कॉम्बिनेशंस राइट नाउ? आई हैव टेकन एप्पल और बनाना. इफ आई टेक द ग्रेप्स एंड द ग्रेप्स एंड मैंगो,
तो जो ग्रेप्स और मैंगो से जो आपका सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो आपको एप्पल और बनाना में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। हायर इंडिफरेंस कर्व gives you higher level of satisfaction। मैंने क्या बोल रहा हूँ? Higher indifference curve gives you higher level of satisfaction। Suppose take it for example, grapes and mango gives you the higher level of satisfaction। Is it clear? Lower indifference curve gives you the low level of satisfaction। Next, indifference curve MRS due to marginal rate of substitution। अभी यहाँ पर marginal rate of substitution क्या है ना? सपोज टेक इट फॉर एग्जांपल, यहाँ से आपको देख रहे हो एप्पल्स और यहाँ पर आपको बनाना। अगर आपका एप्पल्स कम हो जाते तो आपको बनानास बढ़ जाएगा। कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड? मतलब एक का सैक्रिफाइस दूसरे का गेन। कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, एमआरएस इज इक्वल टू सैक्रिफाइस ऑफ वन गुड टू गेन अदर गुड। मैंने क्या बोल रहा हूँ ना? एमआरएस नथिंग, एमआरएस सिंपली द सैक्रिफाइस ऑफ वन गुड इज द गेन ऑफ अदर गुड। इसलिए ये एमआरएस के कारण आपके जो इंडिफरेंस कर्व है ये आपका कॉन्वेक्स शेप में आते हैं। ये हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, why the indifference curve in convex shape? Because of the marginal rate of substitution। Marginal rate of substitution is simply a ratio of sacrifice and gain। एक गुड्स को अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो तो दूसरी गुड्स आपको ज्यादा मिलेगा। एमआरएस के कारण क्या होते हैं ना, आपके जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ये कॉन्वेक्स शेप में आते हैं। एक इंडिफरेंस कर्व दूसरी इंडिफरेंस कर्व को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों से, जैसे मैंने बोला हूं, जो दो गुड्स सपोज एप्पल और बनाना एंड द ग्रेप्स एंड मैंगो, दोनों जो गुड्स है ये दोनों गुड्स से अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक दूसरों को कभी इंटरसेक्ट कर। और अगर बहुत सारे एक ग्राफ में अगर हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो उसको बोला जाते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोला जाते हैं? उसको बोला जाते हैं इंडिफरेंस कर्व। सो राइट नाउ आई वुड लाइक टू रिकैप व्हाट इज ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच आपको रैंक और बेसिस में, प्रेफरेंस के बेसिस में, इफ यू वांट बनाना मोर यू हैव टू सैक्रिफाइस एप्पल मोर। कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड? दो as I told you MRS is clear, मैंने आपके previous lecture में MRT explain किया था, same like MRS MRT is it clear? तो आपके एक का sacrifice दूसरे का gain के कारण आपके indifference का convex shape का होते हैं। एक indifference का कभी दूसरी indifference का को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। एक इंडिफरेंस का दूसरे इंडिफरेंस का से अलग ही होते हैं, और आपके एमआरएस के कारण वो अगर एक का सैक्रिफाइस होते हैं तो दूसरी चीज ज्यादा मिलता है। कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड? तो ऑर्डिनल अप्रोच में ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, इसमें आपने बजट लाइन पढ़ाई। व्हाट इज बजट लाइन? इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ परचेसिंग और द विदिन अ बजट, विदिन अ लिमिटेड 10 रुपीज में, 10 रुपए में हमने कितने एप्पल्स, कितने बनाना खरीद पाएंगे। तो इसको अगर हम एक ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस? 10 0 8 4 6 8 4 12, these are the possible combination। इसी को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या एक लाइन मिलता है। इससे क्या, ये क्यों लाइन में मिलते हैं? कांस्टेंट रेट में चेंज हो रहा है, देखो 2 2 करके चेंज हो रहा है। इससे क्या, तो हमें एक ऐसी लाइन मिलते हैं, इसको बोला जाते हैं बजट लाइन। और ये बजट लाइन में एक होते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मतलब एक रैशनल कंज्यूमर, जहां पर उनको एक where a rational consumer want to purchase more quantity of two of the goods, तो 6 8 के जो combinations होते हैं इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। और आपके जो इंडिफरेंस कर्व है, ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ द सैटिस्फाई, ये इंडिफरेंस का बजट लाइन में इसी पॉइंट में टच करते हैं, और इसी पॉइंट को बोला जाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। This is all about the
consumer equilibrium chapter. So I just explained once again, utility means the satisfaction power of the commodity. Total utility means the total after consuming number of units, whatever total utility we derive from that product, that is called the total utility. The unit of utility is called the utils. Is it clear? Law of diminishing marginal utility states that as you consume more and more utility, more and more, the commodity of a commodity, the utility goes on decreasing. Okay. Next, there are consumer equilibrium refers to a conditions or situations when a consumer gets a maximum satisfaction within his limited income, limited resource. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं हम दो अप्रोच से, एक होते हैं कार्डिनल अप्रोच जिसको यूटिलिटी एनालिसिस बोला जाता है, अनदर वन इज द ऑर्डिनल ऑन द बेसिस ऑफ रैंक एंड द प्रेफरेंसेस जिसको हम बोलते हैं हिग्सन एनालिसिस. कार्डिनल अप्रोच में व्हाट वी हैव सीन ना, एज कार्डिनल अप्रोच में हम लोग क्या देखें, व्हाट वी हैव सीन ना, इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच वी फाइंड दैट कार्डिनल अप्रोच में हम लोग ये देखें जैसे एक कमोडिटी ना, यहाँ पर एक चीज हमें याद रखना है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. इट इज सिंपली क्या है ना, जब यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड करते हैं हमें मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बोला जाता है. जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी दोनों इक्वल होते हैं, मतलब जितने के हमने प्राइस पे किए उसके हिसाब से मॉनेटरी यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, उस हिसाब से हमें उतना सेटिस्फेक्शन मिले, तब हम उस कंडीशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं. इन केस ऑफ सिंगल ऑफ कमोडिटी, व्हेन प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल px इज इक्वल टू mux, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ प्रोडक्ट x, जब ये कंडीशंस होते हैं, मैंने क्या बोला, प्राइस x px इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ x कमोडिटी इज इक्वल होते हैं, तब उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल. डबल कमोडिटी के व्हाट वी हैव सेड ना, mux of marginal utility of product x is equal to the marginal utility of product y when both are equal, means दोनों कमोडिटी से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी. Next we are come to the ordinal approach. Ordinal approach means on the basis of rank and preferences. रैंक और प्रेफरेंस के बेसिस में हमने जब प्लॉट करते हैं, हम कुछ किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं, इसी को हिग्सन एनालिसिस बोलते हैं. यहाँ पर हमने क्या देखे, इंडिफरेंस का. इंडिफरेंस का कुछ नहीं है, इट इज सिंपली अ सेटिस्फेक्शन. हम अपना सेटिस्फेक्शन को अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है, उसको बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व. और ये इंडिफरेंस का बजट लाइन में जिस पॉइंट में टच करते हैं उसको बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. A budget line, as I told you right now, budget line is nothing, the within a budget, within a limited resource हमने जो different possible of combination of two goods को purchase कर सकते हैं, उसको अगर हम plot करते हैं तो हमें एक ऐसी line मिलता है, उसको बोलते हैं budget line. और budget line में एक होते हैं monotonic preference, एक rational consumer, maximum number of एप्पल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बनाना खरीदना चाहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को 6-8 कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं, उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. और ये इंडिफरेंस कर्व इज क्लियर, जहां पर आपके इस बजट लाइन को टच करते हैं वहां पर टेंजेंट इस पॉइंट को बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ना कैरेक्टर ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एक इंडिफरेंस कर्व कभी दूसरे इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, हमेशा कॉन्वेक्स शेप में आते हैं बिकॉज ऑफ एमआरएस. इसलिए हायर इंडिफरेंस कर्व्स गिव्स यू हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स यू लोअर लेवल. आई थिंक आई मेक यू I put my all efforts to make you understand the consumer equilibrium. It's a very important chapter for you. Is it clear? Next day we will go for the next chapter, that is demand. Till then, stay safe. Thank you.